हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन and you all are trying to vaccinate yourself. Welcome to Ask Chem Octet. The main motto of this video is to prevent accidents in chemistry laboratory and few tips if you entering in a laboratory, what you should follow, what you should do and what you should not do. That is the main thing. Okay. So क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सी टिप्स हम लोगों को फॉलो करके जाना है. ओके. सो एक्सीडेंट को रोकना, दिस इज द फर्स्ट मोटो. सेकेंड मोटो है कि कोई भी शरीर में अगर प्रॉब्लम आ जाए, इंजरीज आ जाए ड्यू टू एनी एक्सीडेंट हैपेंड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी, तो कैसे हम लोग फास्ट एड मेजरमेंट करेंगे. दैट इज द मेन सेकेंड थिंग ऑफ माय वीडियो. सो इस वीडियो को अंत तक देखना. होप it will satisfy your requirement. Okay, so please keep watching till the end. First of all, let's discuss some chemistry laboratory accident. Okay, there are many accidents in chemistry laboratories, but here I am going to discuss some of the very dangerous and pathetic chemistry laboratory accidents in the world. So I am going to discuss one by one. The first accident which I am going to explain, that is the incident happened in 1996. What happened? क्या हुआ था? फेमस केमिस्ट कैरन वाटरहैन, उनका डेथ हो गया था. जब क्या हुआ था, डाइमिथाइल मर्करी वाज ड्रॉप्ड इनटू हिज हैंड. एक्चुअली उन्होंने ग्लव्स पहना था, फिर भी जो डाइमिथाइल मर्करी है उनके ग्लव्स को पेनिट्रेट करके स्किन में चला गया था और मर्करी पॉइजनिंग जो बॉडी में लास्ट में एंटर हो गया था और मर्करी पॉइजनिंग की वजह से उनका डेथ हो गया. Actually, the second incident which was happened, that is the tert-butyl lithium. Okay, tert-butyl lithium ट्रांसफर के समय में आग लग जाने की वजह से सेरी संगजी जो क्लोथिंग है उसमें पूरा जल गया था और उस बार्निंग का रिजल्ट में उनका फ्यू वीक्स लेटर में डेथ हो गया. So this is very pathetic incident was happened. Okay, another incident if I am going to discuss, that was happened in Texas Tech University in 2010. What happened? Mishandling of nickel hydrogen perchlorate, उसके वजह से two students suffered from burn and they lost their fingers. Very pathetic situation. Another situation if I will discuss, that is very pathetic, that was happened in University of Hawaii. Okay, in March 2016. What happened? There also the Elkins coward, okay, he lost his arm. कैसे? Due to the passage of charge of static electricity between Elkins cowards and a gas storage tank contain hydrogen, oxygen and carbon dioxide through an explosion. Very So हम लोगों को लग रहा है कि सारे एक्सीडेंट क्या आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है, इंडिया में कोई एक्सीडेंट नहीं है, और आर द labs in India are very safe? No, the answer is no. Here I am going to say some of these accidents which also happened in India also. The most recent incident which was happened in Pune, NCL Pune. Okay, this is the incident. Okay, that is July 24. Very recent incident in 2021. What happened? Fire breaks out at National Chemical Lab. No casualty. Okay, very good thing that no casualty happens. Okay, कोई भी मौत नहीं हुआ, but वहाँ फायर लग गया था. सेकेंड इंसिडेंट हुआ था, the incident is July 16, 2021 report. Okay, that is Izhar Chemicals Lab in Pune that catches का minor injury आया. Okay, that also very pathetic. Okay, if we go some before, okay, if we go a little bit before, then we can found March 11, 2020. Okay, 4 students injured
in explosion inside chemistry lab in Assam University. Very, very pathetic. Here is the picture which was reported in India today. Another incident when class 12 students injured in a blast in Himachal school lab. Okay, this was a report. A report भी February 18, 2020 में report हुआ था. Another incident, if you see, that is in Bengaluru, chemical explode during test at forensic lab, 7 hurt. Okay, this was happened in 13 November 2019. Okay, another in laboratory chemistry lab explosion injures 3 students. So this is the incident's picture. Okay. Laboratory safety is very, very important to prevent chemical accidents. So today my topic of discussion will be how we can prevent accidents. Okay, so what are the do's and what are the don't do's? What are the first aid measure we should take? So today we will be discuss only these things. Okay. So first we will be mainly focusing on the prevention. क्या हम लोग सच में केमिस्ट्री लैबोरेटरी में एक्सीडेंट रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो क्या स्टेप्स हम लोगों को लेना पड़ेगा और व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स वी शुड फॉलो if some in case any accident happened in our laboratory. Okay. A complete protected laboratory appearance will be with goggles, gloves, apron, shoes, and this is the representation of a laboratory appearance with complete protection. Okay. Next, what we should not do in our lab. Okay. That first thing, कोई भी फूड और ड्रिंक नहीं करना है उसमें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स रहता है जो प्रॉब्लम करेगा शरीर में. नेक्स्ट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है. कोई भी नेल्स मतलब सिंथेटिक नेल्स जो पहनती है, दैट इज हाईली not recommended because if sometimes catches fire it will burn very, very fast. Okay. Next, दुपट्टा, that is also not allowed. कभी भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं केमिकल्स लेके तो तुरंत जाके हम लोग उसी हाथ से हम लोग फेस वॉश नहीं करेंगे. ओके, सो डोंट डू वॉशिंग योर फेस विथ केमिकल्स इन हैंड. ओके. नेक्स्ट, we have to focus the materials. अगर हम लोग फर्स्ट एड किट हम लोग रखते हैं लेबोरेटरी में तो उसमें क्या क्या कॉमन चीज रहना चाहिए, दैट विल बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ओके. फर्स्ट एड किट हम लोगों को रखना है, ऐसा एक बॉक्स रख देना है, फर्स्ट एड बॉक्स. उस बॉक्स में अब हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज रखना है, कॉमन आइटम्स, और क्या क्या सॉल्यूशन रखना है और क्या क्या मेडिसिन रखना है. ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे कॉमन आइटम में, दैट इज कॉटन रखना है, बैंडेज रखना है, गॉज, एडेसिव टेप, सीजर, बैंडेड, माइक्रोपोर टेप, सोप, आइस पैक, डिस्टिल वाटर. दिस आर द कॉमन आइटम. जनरली डिस्टिल वाटर इसमें नहीं रखा जाता है, वो अलग से बोतल में रखा जाता है, बट एज ए फर्स्ट एड किट इसको रखना जरूरी है. सेकेंड थिंग, सॉल्यूशन. किस तरह का सॉल्यूशन हम लोगों को रखना है, दैट इज डेटॉल, सेवलॉन टाइप कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखना है. अल्कोहल और स्पिरिट रखना है, कोई भी वुंडेड चीज को जो है उसको साफ करने के लिए. 1% सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड सॉल्यूशन रखना है. 2% अमोनिया सॉल्यूशन रखना है और ग्लिसरीन रखना है. तो ये सारे चीज सॉल्यूशन के कैटेगरी में ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों को और ये सारे मटेरियल्स हम लोगों को स्टोर करके रखना है. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेडिसिन वी शुड कीप इन स्टॉक इन द लैबोरेटरी. वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. चारकोल टैबलेट, बीटाडाइन, स्टीमाटिल एमडी, नेप्रोसिन, कोलिमैक्स, ट्राइकेन एमपीएस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोफ्रामाइसिन, सिल्वर सल्फाडायाजिन, बार्नॉल, क्लोरोमाइसिन.
So these are the common medicine we should keep in stock in our laboratory. Means अगर हम लैब में जाते हैं वहाँ केमिकल्स का बहुत सारे बोतल हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो कोई भी बोतल छूने से पहले हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस सम सिंबल्स. ओके, व्हिच इज if you know the symbols then you can handle that chemicals very easily. First of all, this type of symbol, it implies that this contains explosive compound. This of symbol, it will show flammable compounds. Next, this type of symbol, it implies dangerous compound when wet. मतलब अगर पानी लग जाएगा इसमें और कोई भी पानी का इसमें हो जाएगा तो डेंजरस साबित हो सकता है. Carcinogenic compound, this signals imply. Another, that is gas under pressure. मतलब अगर खोलेंगे बहुत प्रिकॉशन के साथ खोलेंगे, बहुत प्रेशर है उस बोतल में, खोलेंगे तो डेंजरस भी हो सकता है, कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ सिग्नल मीन्स इट विल create problems in eyes. Another is toxic compound, so we have to use very very carefully this compound. Another is biohazard compound. So these are the common terms which implies that how we have to take precautions if we are touching that type of container or that type of bottle. So next, first aid for injury in lab. अगर कोई इंजरी हो जाता है केमिकल लेबोरेटरी में तो क्या क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज इफ कटिंग, ओके, फ्रॉम ब्रेकिंग ग्लास एपरेटस. ठीक है, अगर कहाँ भी कट हो जाता है ग्लास एपरेटस को ब्रेक होने के कारण से, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या मेजर लेना पड़ेगा. फर्स्ट तो हम लोगों को अच्छे से पानी से उसको धोना पड़ेगा. नेक्स्ट, वी हैव टू अप्लाई डिसइंफेक्ट लाइक सैवलॉन, डेटॉल, उससे डिसइंफेक्ट से साफ करके फिर उसमें हम लोग कोई भी ऑइंटमेंट और डायलूट फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन और टिंचर आयोडीन वी कैन अप्लाई देयर. ओके, नेक्स्ट, इफ दैट इंजरी कम्स फ्रॉम बार्निंग. ओके, अगर कभी भी आग लग जाता है इनफ्लेमेबल केमिकल्स और सॉल्वेंट से और उसके वजह से हमारा कहाँ भी जल जाता है शरीर, तो उसको क्या करना होगा. सिमिलर प्रोसेस है, पहले ठंडा पानी से और टैप वाटर और कोल्ड वाटर से अच्छे से धोना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बीटाडाइन, सिल्वर सल्फाडाइजीन, सोफ्रामाइसिन, बार्नोल, इस तरह का क्रीम हम लोगों को तुरंत लगा देना पड़ेगा उसमें. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू. अगर केमिकल स्पिल हो जाता है शरीर में, अगर कोई भी केमिकल गिर जाता है तो क्या करना होगा. अगर एसिड गिरेगा तो उसको हम लोगों को आइस कोल्ड वाटर से थॉरोली वॉश करना पड़ेगा. फिर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से हम लोगों को उसको वॉश करना पड़ेगा. और फाइनली हम लोगों को डिसइंफेक्टेंट लगाना पड़ेगा उसमें. ठीक है, डिसइंफेक्टेंट जैसे ड्राई द स्किन एंड कवर विथ एंटीसेप्टिक आफ्टर वॉशिंग. सो वॉश करके फिर एंटीसेप्टिक देना पड़ेगा. सिमिलरली अगर एल्काली स्पिल हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं. एल्काली स्पिल के केस में, इन केस ऑफ एल्काली स्पिल, फर्स्ट सेम प्रोसीड्योर, वॉश करना है थॉरोली नॉर्मल पानी से, फिर आइस कोल्ड वाटर से, उसके बाद 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से वॉश करना है, फिर पानी से वॉश करना है और ड्राई करके फिर एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करना है. और अगर ब्रोमीन गिर जाता है तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, उसमें पहले तो पानी से वॉश करना ही होगा, साथ साथ 2% अमोनिया सॉल्यूशन से उस एरिया को वॉश करना होगा. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज ग्लिसरीन और एंटीसेप्टिक क्रीम आफ्टर वॉशिंग. ओके, नाउ इफ एनी इंजरी इन आवर आईज, अगर आंख में कोई भी इंजरी हो जाता है तब हम लोगों को क्या करना है. उस समय हम लोगों को, अगर एसिड और बेस स्पिल होता है, हम लोगों को थॉरोली वाटर से वॉश करना होगा और उसके बाद उस जगह पर 1% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर ग्लास वहाँ कभी भी
लग जाता है, ग्लास से इंजरी होता है, तो हम लोग को इमीडिएटली कोशिश करना होगा कैसे भी अगर ग्लास को हम लोग रिमूव कर पाए और इमीडिएटली एक भी नियर बाय हॉस्पिटल और नियर बाय आई स्पेशलिस्ट को हम लोग को तुरंत दिखा लेना है विदाउट एनी डिले। ओके, नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी हैपेंड अगर हो सकता है जिसमें हम लोग केमिकल्स को इनहेल कर सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि केमिकल्स इनहेल हो जाता है। अगर केमिकल्स इनहेल हो जाएगा तो उस समय हम लोग को क्या करना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट बहुत सारा पानी हम लोगों को पी लेना है, बहुत सारा पानी पीना है और उसके साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेना है और एंटासिड और लेना है और बनाना भी लेना है। ओके, तो एसिड अगर हम लोग एसिड इनहेल कर लेते हैं तो ये स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बेस ले लेते हैं तो उसमें क्या करना होगा, लॉट्स ऑफ हम वाटर पहले लेना होगा, उसके बाद लेमन जूस हम लोग ले सकते हैं और बनाना भी ले सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी हेवी सॉल्ट ले लेते हैं तो उस केस में हम लोगों को मिल्क और व्हाइट पार्ट ऑफ एग हम लोगों को लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चारकोल टैबलेट भी ले सकते हैं। गलती से अगर हमारे शरीर में आर्सेनिक और मार्करी कंपाउंड अगर चला जाता है तो तब हम लोग को क्या करना होगा, उस समय हम लोगों को एमेटिक मटेरियल्स जैसे कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ये सब चीज हम लोगों को लेना होगा, एग लेना होगा, पाउडर ऑफ चारकोल, ठीक है, इस तरह का उसका जो टैबलेट मिलता है वो भी लेना पड़ जाएगा। अगर इस वीडियो का कोई भी पोर्शन पर तुम लोगों को लग रहा है कि और भी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और कुछ पोर्शन में और भी जानकारी ज़रूरत है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, I will try to make another video on that topic. Okay, this is a small attempt for you and hope you will watch and you will circulate among your friend circle. तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर भी तुम लोग इसको सर्कुलेट करोगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो। Hope you will follow these rules whenever you will enter in a chemistry laboratory. So be safe and keep learning. Thank you.